زرین آباد ایک قدیم اور خوشحال شہر تھا جس کی بلند فصیلیں، سنگی دروازے، پیچیدہ گلیاں اور رنگا رنگ بازار کافی فاصلے تک مشہور تھے۔ دن کے وقت یہاں ہر طرف لوہاروں کی ہتھوڑوں پر پڑتی چوٹوں کی آوازیں، کپڑا فروشوں کی صدائیں، مصالحوں کی خوشبو اور مسافروں کی چہل پہل شہر کو زندہ رکھتی تھی۔ مگر اسی رونق کے درمیان ایک ایسا نوجوان بھی رہتا تھا جسے دیکھ کر اکثر لوگ ترس کھاتے تھے۔ اس نوجوان کا نام حارث تھا۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا، اس لیے نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کی شفقت۔ زندگی نے اسے کم عمری ہی سے محنت کرنا سکھا دیا تھا۔ کبھی وہ بڑئی کے ہاں لکڑیاں اٹھاتا، کبھی کسی تاجر کا سامان منزل تک پہنچاتا، کبھی بازار میں مزدوری کرتا اور کبھی کسی بوڑھے مسافر کو اس کی منزل تک چھوڑاتا۔ دن بھر کی سخت مشقت کے بعد بھی اس کے پاس اتنے ہی سکے ہوتے کہ 2 وقت کی سادہ روٹی کا بندوبست ہو سکے، لیکن غربت کے باوجود اس نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر زرین آباد میں کوئی نوجوان عقل، دیانت اور صبر کا پیکر ہے تو وہ حارث ہے۔ شہر کے بزرگ اس کی تعریف کرتے، تاجر اس پر اعتماد کرتے اور عام لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ مگر اسی شہر میں چند ایسے امیر زادے بھی رہتے تھے جنہیں دوسروں کی عزت سے زیادہ اپنی دولت پر غرور تھا۔ جابر، فہیم اور طاہر نامی یہ تینوں نوجوان شہر کے رئیس خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، کمزوروں کو ذلیل کرتے اور اپنی دولت کے زور پر ہر کسی کو حقیر سمجھتے۔ اگر کبھی انہیں کوئی مفلس انسان راستے میں مل جاتا تو وہ اسے روک کر اس کی بے بسی پر قہقہے لگاتے اور یہی ان کی تفریح ہوتی۔ حارث کئی مرتبہ ان کے طنز کا نشانہ بن گیا تھا، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ غرور سے بھرا ہوا انسان نصیحت سے نہیں وقت سے سبق سیکھتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت سورج اس شدت سے چمک رہا تھا کہ گلیاں لگ بھگ خاموش ہو گئی تھیں۔ حارث صبح سے مسلسل مزدوری کر رہا تھا اور تھکن سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ شہر سے ذرا فاصلے پر ایک قدیم اور ویران سرائے کے کھنڈرات کے پاس پہنچا جہاں ایک پرانا برگد کا درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ حارث نے ماتھے پر آئی نمی صاف کی درخت کے نیچے بیٹھ کر گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ رب اسے محنت کی برکت عطا کرے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے لکڑی کے عصا کی دھیرے دھیرے زمین پر پڑتی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے سفید داڑھی والے ایک بزرگ درویش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور صورت پر ایسی نورانی مسکراہٹ تھی جو دیکھنے والے کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ درویش حارث کے قریب بیٹھ گئے اور بولے، بیٹے میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری صورت پر تھکن ضرور ہے مگر شکایت نہیں، ہاتھ خالی ضرور ہیں مگر نیت صاف ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ حارث نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، بابا جی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، صرف دعا ہے کہ رب آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگ ہلکے سے مسکرائے، پھر اپنے ہاتھ میں موجود کپڑا کھولا۔ اس کے اندر ایک قدیم تانبے کی سراہی تھی۔ سراہی پر زنگ کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی، اس کا رنگ ماند پڑ گیا تھا اور دیکھنے میں وہ کسی عام پرانے برتن سے زیادہ قیمتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بزرگ نے وہ سراہی حارث کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ میرے پاس برسوں سے امانت کے طور پر تھی مگر اب اس کا اصل حقدار تم ہو۔ یاد رکھنا، دنیا میں بعض چیزوں کی اصل قیمت ان کی شکل میں نہیں، اس عقل میں ہوتی ہے جو انہیں استعمال کرتی ہے۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، بابا جی اس میں کوئی خاص بات ہے؟ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور صرف اتنا کہا، وقت آنے پر تم خود جان جاؤ گے۔ پھر وہ اپنے عصا کے سہارے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حارث دیر تک انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے سراہی کو چاروں طرف سے غور سے دیکھا مگر اسے اس میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید اس پرانے برتن کو بازار میں فروخت کر کے چند دن کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اس نے احتیاط سے سراہی کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور شہر کے مرکزی بازار کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ بازار سے کچھ فاصلے پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے جابر، فہیم اور طاہر اپنے چند نوکروں کے ساتھ آتے نظر آئے۔ تینوں نے کافی فاصلے ہی سے حارث کو پہچان لیا۔ جابر نے طنزیہ انداز میں آواز لگائی، ارے دیکھو، آج تو ہمارا پرانا مزدور کوئی خزانہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ فہیم ہنس کر بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کباڑ خانے نے اسے اپنا نیا نگراں بنا دیا ہو؟ طاہر آگے بڑھا، اس نے حارث کا راستہ روکا اور کپڑے میں لپٹی سراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا ہمیں بھی نظر تو آنے دو۔
आखिर ऐसी कौन सी अनमोल चीज है जिसे तुम इस तरह सीने से लगाए हुए हो? हारिस जान गया कि ये लोग इसे जलील करना चाहते हैं, मगर उसकी सूरत पर घबराहट के बजाय हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, अगर आप इसे सिर्फ एक पुराना बर्तन समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी, मगर मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि इस सुराही में एक ऐसा राज ओझल है जिसे हर शख्स समझने की सलाहियत नहीं रखता। ये सुनते ही तीनों नौजवानों की सूरतों के तासुरात बदल गए। चंद लम्हे पहले जो लोग कहे लगा रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देख रहे थे। उनके दिलों में यह ख्याल पैदा हो गया था कि अगर वाकई इस मामूली सी नजर आने वाली सुराही में कोई ओझल राज खजाना है तो इसे हर हाल में हासिल करना चाहिए। जाबिर ने मसनूई नरमी इख्तियार करते हुए कहा, अगर वाकई ये इतनी कीमती है तो हम उसकी अच्छी कीमत अदा कर सकते हैं। मगर हारिस ने इसी वक्त जवाब दिया, हर चीज दौलत के बदले नहीं दी जा सकती। ये जवाब सुनकर तीनों के दिल में लालच और जिद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और हारिस उनकी आंखों में झलकती हिर्स को खामोशी से पड़ गया था। इसी लम्हे इसके जहन में एक ऐसी गैर मामूली तदबीर ने जन्म लिया जो सिर्फ उन तीनों की दौलत ही नहीं, उनके गुरूर को भी हमेशा के लिए खाक में मिला देने वाली थी। जाबिर, फहीम और ताहिर के दिलों में लालच इस कदर बढ़ गई थी कि वो सुराही को हासिल किए बगैर वहां से जाने पर आमादा ना थे। जाबिर ने अपनी कमर से बंधी चमड़े की थैली खोली, इसमें से चंद चांदी के सिक्के निकाले और हारिस की तरफ उछालते हुए बोला, ले, इतने पैसों में तेरे जैसे गरीब की कई हफ्तों की जरूरत पूरी हो जाएगी। ये पुराना बर्तन हमारे हवाले कर दे। हारिस ने सिक्कों की तरफ एक नजर डाली, फिर खामोशी से नीचे होकर उन्हें उठाया और एहतराम से वापस जाबिर के हाथ में रख दिए। वो निहायत पुरअमन अंदाज में बोला, जनाब, अगर मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत होती तो शायद मैं ये सौदा कर लेता, लेकिन बाज अमानतें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत दौलत से नहीं लगाई जा सकती। हारिस का ये जवाब सुनकर फहीम की सूरत गुस्से से सुर्ख हो गई। इसने कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, बहुत अक्लमंद बनता है। याद रख, अगर हम चाहें तो ये सुराही जबरदस्ती भी ले सकते हैं। ताहिर ने भी धमकी आमेज अंदाज में मुट्ठियां भींच ले, मगर हारिस ने ना घबराहट जाहिर की और ना गुस्सा। वो अच्छी तरह जानता था कि तीन ताकतवर नौजवानों से इसी वक्त टुकर लेना सरासर बेवकूफी होगी। चंद लम्हों में इसके जहन ने एक ऐसी चाल तैयार कर ली जिसका तसव्वुर भी उन तीनों ने नहीं किया था। इसने अचानक नर्म लहजा इख्तियार किया, सर नीचे होकर बोला, अगर आप लोग वाकई इस सुराही को इतना पसंद करते हैं तो मैं एक शर्त पर इसे आपके हवाले करने के लिए तैयार हूं। तीनों चौंक गए। जाबिर ने इसी वक्त पूछा, कैसी शर्त? हारिस ने इंतहाई आजिज़ी से जवाब दिया, मैं बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर आप मुझे अपने घर में एक मामूली खादिम के तौर पर रख ले, मुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाए तो मैं ये सुराही खुशी से आपके हवाले कर दूंगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे किस्मत उन पर मेहरबान हो गई हो। एक तरफ वो पुरस्रार सुराही मिल रही थी और दूसरी तरफ बगैर उजरत के एक मेहनती नौकर भी। चंद लम्हों की सरगोशियों के बाद जाबिर हंसते हुए बोला, आज से तुम हमारी हवेली में रहोगे। अगर तुमने वफादारी दिखाई तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हारिस ने मसनूई ममनूनियत के साथ सर नीचे कर लिया और सुराही उनके हवाले कर दी। वो अंदर ही अंदर मुस्करा रहा था, इसलिए कि इसके मंसूबे का पहला मरहला कामयाब हो गया था। इसी शाम वो तीनों के साथ उनकी वसीओ अरीज हवेली में पहुंच गया। हवेली शहर की सबसे शानदार इमारतों में शुमार होती थी। बुलंद सुतून, संगमरमर के फर्श, कीमती कालीन, बड़े बड़े फानूस और सोने चांदी से सजे हुए कमरे हर आने वाले को हैरान कर देते थे। मगर इस शान और शौकत के बावजूद वहां एक चीज की शदीद कमी थी, वो थी नज्म और ज़ब्त। मुलाजिम अपनी मर्जी से काम करते, हिसाब किताब पड़ा हुआ था। गोदामों में सामान का कोई दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं था और खुद तीनों रईस ज़ादे ऐश और इशरत में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें अपने माल की सही मिकदार तक मालूम ना थी। हारिस ने पहले ही दिन खामोशी से सब कुछ देखना शुरू कर दिया। वो हर मुलाजिम का रवैया, हर कमरे की तरतीब, खजाने तक जाने वाले रास्ते, गोदामों के ताले और मालिकों की आदतें गौर से नोट करता रहा। अगले चंद दिनों में इसने अपनी मेहनत और खुश इखलाकी से पूरी हवेली का नक्शा बदल दिया। वो सुबह सबसे पहले जागता, काम तकसीम करता, खराब हिसाब दुरुस्त करता, गुमशुदा सामान ढूंढ निकालता और शाम तक हर जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से पूरी करता। चंद ही दिनों में हवेली के पुराने मुलाजिम भी इसकी तारीफ करने लगे।
जाबिर, फहीम और ताहिर को महसूस होने लगा कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे ईमानदार खादिम मिल गया है। उन्होंने खजाने की चाबियां भी धीरे धीरे इसी के हवाले करना शुरू कर दी और बाजार से कीमती सामान खरीदने की जिम्मेदारी भी हारिस को सौंप दी। यही वो लम्हा था जिसका हारिस इंतजार कर रहा था। एक दिन वो बाजार जाने के बहाने शहर के मुख्तलिफ ताजिरों से मिला। वो इन दुकानदारों में से अक्सर को पहले से जानता था, इसलिए कि बरसों उन्हीं बाजारों में मजदूरी कर चुका था। इसने एक एक करके कपड़े फरोश, खुश्क मेवा फरोश, इत्र फरोश, सुनार और दूसरे बड़े ताजिरों से अलग अलग मुलाकात की। हारिस ने अपनी जमा पूंजी और हवेली के मामूली खर्च में से बचाए हुए चंद सके मिलाकर उन सबको पेश की रकम अदा की और उनसे एक अजीब दरखास्त की। इसने कहा, चंद दिन बाद में एक खास नीले रुमाल को गिले में डालकर अपने मालिकों के साथ आपकी दुकान पर आऊंगा। इस वक्त आप लोग मेरे सामने बेहतरीन सामान रखेंगे, मुझसे कीमत का मुतालबा नहीं करेंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे ये रुमाल किसी गैर मामूली असर का मालिक हो। इसके बदले ये पेशगी रकम आपके पास अमानत रहेगी और बाद में अगर मजीद अदायगी की जरूरत हुई तो मैं पूरी कर दूंगा। पहले तो दुकानदार हैरान हुए, मगर वो सब हारिस की दियानतदारी से वाकिफ थे। उन्हें यकीन था कि वो धोखा नहीं देगा, इसलिए सब उसकी बात मान गए। चंद रोज बाद हारिस बाजार से वापस आया तो उसके गिले में एक खूबसूरत नीला रुमाल बंधा हुआ था, जिस पर सुनहरी धागे से नफीस नक्श और निगार बने हुए थे। जाबिर ने हैरत से पूछा, ये रुमाल कहां से आया? पहले तो कभी नजर नहीं आया। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये कोई आम रुमाल नहीं, ये मेरे खानदान की एक नायाब निशानी है। कहते हैं कि जो शख्स इसे पहनकर बाजार जाए, अगर उसकी किस्मत साथ दे तो इसे किसी चीज की कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। जाबिर, फहीम और ताहिर पहले तो जोर से हंस पड़े, मगर जब उन्होंने हारिस की सूरत पर गैर मामूली एतमाद देखा तो उनके दिल में दोबारा वही पुराना लालच जाग उठा। वो ये जानने के लिए बेताब हो गए कि आया वाकई इस मामूली नजर आने वाले नीले रुमाल में कोई पोशीदा राज है, वरना हारिस एक बार फिर कोई ऐसी बात कह रहा है जिसके पीछे कोई ऐसी हकीकत ओझल है जिस तक अभी उनकी अक्ल नहीं पहुंच सकी। अगली सुबह जाबिर, फहीम और ताहिर बेकरारी से हारिस के तैयार होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही हारिस ने वही नीला रुमाल गिले में बांधा, तीनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसके साथ बाजार की तरफ रवाना हो गए। पूरे रास्ते वो रुमाल के बारे में सवाल करते रहे, मगर हारिस हर बार यही कहता, हर राज वक्त से पहले जाहिर हो जाए तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। ये जवाब उनके तजस्सुस को और बढ़ा देता। जब वो बाजार के पहले बड़े कपड़े फरोश के पास पहुंचे तो दुकानदार ने फासले ही से हारिस को पहचान लिया। वो इसी वक्त अपनी जगह से उठा, अदब से सलाम किया और निहायत एहतराम के साथ उन्हें अंदर बिठाया। फिर इसने कीमती रेशमी कपड़े, नफीस अबाएं और उम्दा लिबास उनके सामने सजा दिए। हारिस ने चंद चीजें पसंद की और खामोशी से उठकर चलने लगा। जाबिर ने हैरत से दुकानदार की तरफ देखा, मगर उसने कीमत का एक लफ्ज भी ना कहा। इसके बाद वो इत्र फरोश के पास गए, जहां महंगे खुशबूदार इत्र और रोगन पेश किए गए। फिर खुश्क मेवा फरोश के पास पहुंचे, वहां भी बेहतरीन बादाम, पिस्ते, शहद और नायाब खुश्क फल उनके सामने रख दिए गए। हर जगह एक ही मंजर दोहराया गया। हारिस जो चीज पसंद करता दुकानदार इज्जत से पैक कर देता और किसी किस्म की अदायगी का मुतालबा ना करता। तीनों रईस ज़ादों की आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थीं। उन्हें लगने लगा कि शायद वाकई इस नीले रुमाल में कोई पुरअसरार तासीर मौजूद है। वापस हवेली पहुंचते ही वो तीनों एक कमरे में जमा हुए। फहीम ने बेकरारी से कहा, अगर ये रुमाल हमारे पास आ जाए तो पूरी जिंदगी किसी चीज पर एक सिक्का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ताहिर ने इसी वक्त जवाब दिया, ऐसी चीज दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, हमें हर हाल में इसे हासिल करना होगा। जाबिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हारिस अब हम पर मुकम्मल एतमाद करता है, जल्दी करने के बजाय अक्ल से काम लेते हैं। इसी शाम उन्होंने हारिस को अपने पास पुकारा। जाबिर ने नरमी से कहा, तुमने चंद ही दिनों में हमारी हवेली संवार दी, हम तुमसे खुश हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सोने के सके नए कपड़े और अलग मकान भी दे सकते हैं, बस वो नीला रुमाल हमें दे दो। हारिस ने इसी वक्त इनकार नहीं किया। इसने गहरी सांस ली और अफसुर्दा लहजे में बोला, ये रुमाल मेरे मरहूम वालिद की आखिरी निशानी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दे सकता। इस जवाब ने तीनों की ख्वाहिश को जिद में बदल दिया। अगले 2 दिन वो बार बार इसे मनाने की कोशिश करते रहे।
कभी दौलत की पेशकश करते, कभी जमीन देने का वादा करते और कभी दोस्ती का वास्ता देते, मगर हारिस हर बार नरमी से इनकार कर देता। आखिरकार एक रात जाबिर ने कहा, अगर हम तुम्हें अपनी हवेली का आधा खजाना दे दें तो? हारिस खामोश हो गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। चंद लम्हों बाद इसने धीमी आवाज में कहा, मैंने यहां रहकर आप लोगों से इज्जत पाई है, इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। अगर आप वाकई इस रुमाल को हासिल करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपकी खातिर इसे छोड़ सकता हूं, लेकिन इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तीनों की सूरतें खुशी से दमक उठीं। इसी रात उन्होंने अपने खजांची को पुकारा, सोने के सके कीमती जेवरात और कई थैलियां हारिस के हवाले कर दें। हारिस ने भी निहायत संजीदगी से नीला रुमाल उनके हाथ में दे दिया। वो बार बार रुमाल को देखते और खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे और हारिस खामोशी से अपनी हासिल की हुई दौलत एक बड़ी गाड़ी में रखवा रहा था। रात गहरी होते ही वो किसी को खबर दिए बगैर जरीन आबाद छोड़कर बहुत फासले पर वाक़े एक इलाके की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ तीनों रईसज़ादे इस यकीन के साथ सोए कि अगली सुबह से उनकी हर ख्वाहिश बगैर किसी कीमत के पूरी होने वाली है, मगर उन्हें अंदाजा भी ना था कि असल आजमाइश अभी शुरू होने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाबिर, फहीम और ताहिर खुशी से बेदार हो गए। उन्हें पूरी रात नींद भी मुश्किल से आई थी, इसलिए उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अब नीला रुमाल उनके पास है और आज से बाजार की हर कीमती चीज बगैर कीमत अदा किए उनकी होगी। फहीम ने बड़े फख्र से रुमाल अपने गिले में बांधा और तीनों सीधे शहर के सबसे मशहूर बावर्ची खाने पहुंच गए। वहां के मालिक ने उन्हें देखा तो हसब मामूल इज्जत से अंदर बिठा दिया, इसलिए कि एक दिन पहले हारिस उनके साथ आया था और पेशगी अदायगी कर दी थी। तरह तरह के लजीज खाने, मिठाइयां और मशरूबात उनके सामने सजा दिए गए। तीनों ने जी भर कर खाया और हसब तवक्को खामोशी से बाहर निकलने लगे। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि बावर्ची खाने का मालिक उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुअद्दबाना मगर मजबूत लहजे में बोला, हुजूर खाने की कीमत अदा कर दीजिए। तीनों एक लम्हे के लिए चौंके, फिर जाबिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हारी नजर हमारे रुमाल पर नहीं पड़ी। मालिक ने हैरानी से रुमाल देखा और कहा, रुमाल अपनी जगह मगर हिसाब अपनी जगह। जब उन्होंने मजीद बहस शुरू की तो मालिक का सब्र जवाब दे गया। इसने अपने मुलाजमों को आवाज दी, जिन्होंने तीनों को घेर लिया। कुछ ही लम्हों में उनकी खूब दुर्गत बन गई। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहां से निकले। फहीम ने गुस्से से रुमाल उतार कर देखा और बोला, जरूर मैंने इसे सही तरीके से नहीं बांधा था, इसीलिए असर नहीं हुआ। ताहिर ने इसी वक्त रुमाल अपने गिले में डाल लिया और कहा, अब देखना मेरे साथ जरूर काम करेगा। वो तीनों सीधे एक मशहूर कपड़े फरोश की दुकान पर पहुंचे। ताहिर ने कई कीमती लिबास पसंद किए और उन्हें उठाकर बाहर निकलने लगा, मगर दुकानदार ने इसी वक्त उसका बाजू पकड़ लिया और कीमत का मुतालबा किया। ताहिर ने फातिहाना अंदाज में रुमाल की तरफ इशारा किया, मगर दुकानदार ने सख्ती से जवाब दिया, ये रुमाल नहीं, रकम दो। जब ताहिर ने इनकार किया तो दुकान के मुलाजिम भी आगे बढ़ आए। धाकम पेल में ताहिर जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिले से नीला रुमाल उतरकर करीब जलती हुई भट्टी में जा गिरा। चंद ही लम्हों में वो खूबसूरत रुमाल आग की लपेट में आकर राख बन गया। तीनों सकते में खड़े रह गए। वो रुमाल जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी दौलत दे दी थी, अब उनकी आंखों के सामने जलकर राख बन गया। शोर सुनकर बाजार के लोग जमा हो गए। जब उन्हें पूरी बात मालूम हुई तो हर तरफ कहकहे गूंजने लगे। इसी दौरान एक उम्र रसीदा ताजिर आगे बढ़ा और बोला, तुम लोग वाकई अजीब हो, कोई जादू नहीं था। इस नौजवान ने कई रोज पहले हम सबको पेश की रकम अदा कर दी थी, इसलिए जब वो तुम्हारे साथ आए तो हम इसे कीमत ना मांगे। तुमने लालच में आकर अक्ल खो दी और उसने तुम्हारी इसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये सुनते ही तीनों की सूरतों का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी दौलत किसी जादू से नहीं बल्कि अपनी हिर्स और गुरूर की वजह से गंवा बैठे हैं। इस दौरान हारिस काफी फासले पर एक नए शहर में पहुंच गया था, जहां इसने एक सादा सा घर खरीदा और नई जिंदगी का आगाज किया। कुछ अरसे बाद उसकी शादी एक समझदार और नेक सीरत खातून मानूर से हुई। हारिस ने एक रात पुरअमन अंदाज में बैठकर अपनी पूरी दास्तान इसे सुनाई। मानूर ने खामोशी से सब कुछ सुना, फिर मुस्कुरा कर बोली, अपने लालची लोगों को उनके गुरूर की सजा जरूर दी, मगर वो सब अक्ल से महरूम थे।
अगर कभी किसी वाकई होशियार और मक्कार शख्स का सामना हुआ तो क्या आप तब भी इसी तरह कामयाब होंगे? हारिस ने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा। मानूर ने दोबारा कहा, असल जहानत इस वक्त साबित होती है जब मुकाबला अपने बराबर अपने से ज्यादा चालाक इंसान से हो। यह बात हारिस के दिल में उतर गई। चंद दिन बाद इसे मालूम हुआ कि इसी शहर में काजी बुरहान अल-दीन नाम का एक शख्स रहता है जो इंसाफ के मनसब पर फाइज होने के बावजूद रिश्वत लेता, लोगों को धोखे से लूटता और अपनी मक्कारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। हारिस ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब इसकी अगली आजमाइश यही शख्स होगी, मगर इस बार इसे पहले से कहीं ज्यादा सब्र, एहतियात और जहानत की जरूरत पड़ने वाली थी। हारिस ने जल्दबाजी के बजाय कई हफ्ते खामोशी से काजी बुरहान अल-दीन की आदतों का मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। वो रोज मुख्तलिफ भेस बदल कर बाजार, अदालत और मस्जिद के आसपास रहता और लोगों की गुफ्तगू सुनता। रफ्ता रफ्ता इसे मालूम हुआ कि काजी बज़ाहिर निहायत परहेज़गार और इंसाफ पसंद नजर आता है, मगर हकीकत में वो हर मुकदमे का फैसला रिश्वत के मुताबिक करता था। लोग दबे लफ्जों में कहते थे कि जिसके पास ज्यादा दौलत हो, इंसाफ भी इसी के हक में हो जाता है। एक दिन हारिस ने देखा कि काजी सुबह सवेरे शहर से बाहर दरिया के किनारे गुस्ल करने आया। इसने अपनी बड़ी सी पगड़ी उतार कर एक पत्थर पर रख दी और पानी में उतर गया। हारिस काफी फासले पर एक दरख्त के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। इसी वक्त वो धीरे धीरे चलता हुआ पगड़ी के करीब पहुंचा, जैसे सिर्फ इसे गौर से देख रहा हो। पानी में मौजूद काजी की नजर इस पर पड़ी तो वो घबरा कर इसी वक्त किनारे की तरफ भागा और गुस्से से बोला, अरे मेरी पगड़ी को हाथ क्यों लगा रहे हो? हारिस ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया, मुआफ कीजिए हुजूर, मैंने तो सिर्फ ये सुन रखा था कि शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स की पगड़ी बड़ी बाबरकत होती है, इसलिए करीब से देखने की ख्वाहिश हुई। काजी ने सख्त लहजे में इसे वहां से भगा दिया, मगर हारिस कुछ फासले पर रुक कर ओझल हो गया। जब काजी ने जल्दी जल्दी पगड़ी सर पर बांधी तो उसकी तहों में से चंद सोने के सके जमीन पर गिर पड़े। इसने इसी वक्त घबरा कर चारों तरफ देखा, सके उठाए और दोबारा पगड़ी के अंदर रख लिए। यही वो राज था जिसकी हारिस को तलाश थी। अब इसे यकीन हो गया कि काजी अपनी नाजायज कमाई हमेशा अपनी पगड़ी में रखता है। इस दिन के बाद हारिस ने अपने मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू किया। वो रोजाना बेहतरीन फल, खुश्क मेवे और उम्दा शहद खरीद कर काजी के पास ले जाता। हर बार निहायत अदब से कहता, हुजूर मैं चाहता हूं कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करूं, यह हकीर सा तोहफा कबूल फरमा लीजिए। लालची काजी मुफ्त के तोहफे देखकर बेहद खुश होता और दिल ही दिल में हारिस को सादा लौ समझने लगा। एक महीना इसी तरह गुजर गया। अब काजी को हारिस पर मुकम्मल एतमाद हो गया। एक दिन हारिस ने निहायत आजिज़ी से कहा, हुजूर कल मेरे घर एक छोटी सी दावत है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब तशरीफ लाकर दुआ करें, इसलिए मेरे घर में बरकत हो। मुफ्त खाने का नाम सुनते ही काजी ने इसी वक्त हामी भर ली, अलबत्ता शर्त रखी कि इसके लिए आरामदेह सवारी का इंतजाम किया जाए। अगले दिन हारिस ने एक खूबसूरत बैल गाड़ी तैयार करवाई और पूरे एहतराम के साथ काजी को अपने घर ले आया। दूसरी तरफ मानूर पहले ही तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुकी थी। हारिस ने जानबूझकर महल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों को भी दावत दे दी, इसलिए घर लोगों से भर गया। जब सब मेहमान खाना खाने और गुफ्तगू में मसरूफ थे, हारिस अचानक अंदर वाले कमरे में गया। चंद लम्हों बाद वो परेशान हालत में वापस आया। इसकी सूरत पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो जोर से बोला, मैं लट गया, मेरी 20 अशरफियां संदूक से गायब हैं। घर में एकदम खामोशी छा गई। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर पूछने लगे, जब तुमने अशरफियां रखी थीं, इस वक्त घर में कौन मौजूद था? हारिस ने नीचे होकर सर रखते हुए जवाब दिया, मैं, मेरी अहलिया मानूर और काजी साहब। बाकी सब मेहमान तो बाद में आए हैं। ये सुनते ही सबकी नजरें काजी बुरहान अल-दीन की तरफ उठ गईं। काजी गुस्से से कांपने लगा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? मगर मजमा में मौजूद एक मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग ने निहायत पुरअमन अंदाज में कहा, अगर आप बेगुनाह हैं तो मामूली सी तलाशी से आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। मजबूरी में काजी ने इजाजत दे दी। लोगों ने इसके कपड़ों की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर कुछ ना मिला। काजी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया और हारिस की तरफ देखा जैसे वो जीत गया हो। मगर हारिस ने निहायत अदब से हाथ बांध कर कहा, हुजूर मुझे यकीन है अब बेकसूर है।
मगर लोगों के दिल से हर शक खत्म करने के लिए अगर आप अपनी पगड़ी भी एक बार उतार दें तो हमेशा के लिए बात खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही काजी की सूरत का रंग बदल गया, इसलिए कि इसे अंदाजा हो गया था कि असल वार अब होने वाला है। हारिस की बात सुनते ही काजी बुरहान अल-दीन के माथे पर घबराहट के आसार नुमाया हो गए। इसने घबरा कर अपनी पगड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोला, ये मेरी इज्जत की निशानी है, मैं इसे किसी के सामने नहीं उतार सकता। मगर मजमा में खड़े लोगों को अब उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, जब आपके कपड़ों की तलाशी हो गई है तो पगड़ी उतारने में हिचकिचाहट क्यों? अगर आप बेकसूर हैं तो इससे आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। लोगों ने भी एक आवाज होकर यही मुतालबा करना शुरू कर दिया। हालात अपने खिलाफ देखकर काजी के पास कोई रास्ता ना बचा। इसने लरसते हाथों से धीरे धीरे अपनी पगड़ी खोली। अभी आखिरी तह खिली ही थी कि इसमें रखी हुई 20 अशरफियां खनक की आवाज के साथ जमीन पर बखर गईं। एक लम्हे के लिए पूरा घर खामोश हो गया, फिर चारों तरफ हैरत और गुस्से की आवाजें गूंजने लगीं। लोग चीख उठे, ये कैसा मुंसिफ है जो दूसरों को इंसाफ सिखाता है और खुद अमानत में खियानत करता है। काजी लाख सफाइयां देता रहा कि ये इसकी अपनी दौलत है, मगर अब कोई इसकी बात सुनने को तैयार ना था। इसकी बरसों की कमाई हुई इज्जत चंद लम्हों में खाक में मिल गई थी। वो जिल्लत और गुस्से से कांपता हुआ वहां से निकल गया, मगर जाते जाते हारिस की तरफ देखकर बोला, तुमने आज मुझे लोगों के सामने रुस्वा किया है, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। काजी के जाने के बाद मानूर ने हारिस से कहा, अपने इसे शिकस्त तो दे दी, मगर ऐसा शख्स खामोश नहीं बैठेगा। हारिस ने पुरम लहजे में जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है, इसलिए अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चंद दिन बाद शहर में एक गरीब मजदूर सलीम का इंतकाल हो गया। इसकी तदफीन में पूरा मोहल्ला शरीक हुआ। इसी रात हारिस के जहन में एक नई तदबीर आई। इसने मानूर को अपना मंसूबा बताया। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर छा गई कि हारिस अचानक एक हादसे में जान की बाजी हार गया है। इसके घर से रोने की आवाजें आने लगीं। मानूर सफेद चादर में लिपटी एक मैयत के पास बैठकर नौहा उजारी कर रही थी और हर आने वाले से यही कहती थी कि मेरे शौहर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी सूरत किसी को ना नजर आए। महल्ले वालों ने इस वसीयत का एहतराम किया और बगैर कफन हटाए मैयत को दफना दिया। और हकीकत ये थी कि वो हारिस नहीं बल्कि सलीम की लाश थी, जिसे पहले से तैयार मंसूबे के तहत वहां रखा गया था और हारिस खुद एक खुफिया जगह पर ओझल था। जब काजी बुरहान अल-दीन तक यह खबर पहुंची तो उसकी सूरत पर बरसों बाद सुकून नजर आया। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मगर इसी रात आधी रात के बाद उसके घर के मरकजी दर पर जोरदार दस्तक हुई। काजी ने खौफजदा होकर पूछा, कौन है? बाहर से गूंजदार आवाज आई, दर खोलो, मैं हारिस हूं। ये नाम सुनते ही काजी के हाथ कांपने लगे। इसने लरसते हुए दरवा कर दिया तो सामने सफेद लिबास में मलबूस हारिस खड़ा था। काजी का रंग जर्द पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मगर तुम तो मर गए थे। हारिस ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ मैं दुनिया छोड़ आया हूं, मगर वहां की नेमतें देखकर तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए वापस आया हूं ताकि तुम्हें भी वो रास्ता दिखा सकूं। जन्नत, दौलत और हमेशा की आसाइश का जिक्र सुनते ही काजी का खौफ धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। यही वो लम्हा था जिसका हारिस इंतजार कर रहा था, इसलिए कि इसे यकीन था कि जिस इंसान की जिंदगी लालच पर कायम हो, इसकी आखिरी शिकस्त भी इसी लालच से शुरू होती है। हारिस ने निहायत संजीदगी से काजी से कहा, वहां एक ऐसी जगह है जहां सोने चांदी के ढेर हैं, मगर वो दौलत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो दुनिया की हर ख्वाहिश छोड़कर आते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी वहां पहुंचा सकता हूं। लालच में अंधे काजी ने बगैर कुछ सोचे फौरी हामी भर ली। हारिस ने इसे हिदायत दी कि आधी रात को शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान में सफेद कफन पहनकर अकेला आ जाए। मुकर्ररा वक्त पर काजी वहां पहुंच गया। हारिस ने पहले से चंद मोतबर लोगों को भी वहां छुपा कर रखा था। इसने काजी से कहा, अगर तुम वाकई वहां जाना चाहते हो तो पहले अपनी सारी नाजायज दौलत और रिश्वत से कमाई हुई अशरफियां यहां रख दो, वहां लालच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं। दौलत के लालच में काजी ने अपनी तमाम अशरफियां और कीमती सामान निकाल कर जमीन पर रख दिया। इसी लम्हे हारिस ने इशारा किया और सारे लोग बाहर आ गए। सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि काजी खुद एतराफ कर गया है कि यह नाजायज दौलत इसी की है। शहर वालों ने इसे इसके मनसब से हटा दिया
اور اس کی دولت غریبوں، یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ قاضی ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا اور حارث اور مانور عزت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں ایک ہی بات مشہور ہو گئی کہ طاقت اور دولت وقتی ہو سکتی ہے، مگر عقل، دیانت اور صبر آخرکار ہر فریب پر غالب آتے ہیں۔